اے رب، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں کتنی بار ایسا ہوا کہ راستہ دھندلا ہو گیا۔ کبھی حالات نے ڈرایا، کبھی لوگوں نے ٹھکرایا، کبھی اپنے ہی دل نے ہمت چھوڑ دی۔ لیکن ہر بار جب میں نے یا اللہ کہا تو کہیں نہ کہیں سے ایک روشنی آئی۔ کبھی وہ روشنی ایک انسان کے روپ میں آئی، کبھی ایک چھوٹی سی خوشخبری بن کر، کبھی ایک سبق بن کر، اور کبھی صرف ایک سکون بن کر جو دل میں اتر گیا۔ اے اللہ، تو نے مجھے سمجھایا کہ امتحان سزا نہیں ہوتا، وہ ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر اور قیمتی بنتا ہے، ویسے ہی بندہ مشکلوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ راتیں جب نیند آنکھوں سے دور تھی، دل میں بے چینی تھی اور دماغ میں ہزار سوال تھے۔ میں نے سجدے میں سر رکھا اور کہا، یا رب، اب میں نہیں جانتا کیا کروں۔ اور تو نے جواب دیا، حالات بدل کر نہیں بلکہ میرا دل بدل کر۔ تو نے مجھے سکھایا کہ صبر صرف انتظار نہیں ہے، صبر بھروسہ ہے، صبر یہ یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ تیری حکمت سے ہو رہا ہے۔ اے میرے مالک، مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤں، میری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے کارن کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اگر کبھی میرے اندر گھمنڈ آ جائے تو مجھے میری اصلیت یاد دلا دینا۔ اگر میں دنیا کی چمک میں کھو جاؤں تو مجھے تیری یاد کی طرف لوٹا دینا۔ اے اللہ، دنیا کی دولت سے پہلے دل کی امیری دے، نام اور شہرت سے پہلے عزت دے، سفلتا سے پہلے سچائی دے، اور ہر نعمت کے ساتھ شکر کرنے والا دل دے۔ مجھے ایسا گھر دے جہاں تیری یاد ہو، ایسا ماحول دے جہاں عبادت آسان لگے، ایسے دوست دے جو مجھے تیرے قریب کریں، ایسی اولاد دے جو تیری راہ پر چلے۔ اگر میری تقدیر میں گرنا لکھا ہے تو مجھے ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط اٹھانا۔ اگر میری راہ میں رکاوٹیں ہیں تو مجھے انہیں پار کرنے کا حوصلہ دینا۔ اے رب، جب میرا دل ٹوٹے تو اسے دنیا نہیں، تیری رحمت جوڑے۔ جب میری امید کمزور پڑے تو تیری طرف سے ایک نشانی مل جائے۔ جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے احساس ہو کہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے جنت کی خواہش کرتا ہوں مگر تیری رجا کے بنا نہیں۔ میں تجھ سے راحت چاہتا ہوں مگر تیری حکمت کے خلاف نہیں۔ میری آخری سانس تک میرا دل تیرے نام سے دھڑکتا رہے، میری زندگی تیری یاد میں گزرے اور میری موت تیری ملاقات کا ذریعہ بنے۔ اے میرے رب، اگر میری دعا میں کمی ہے تو تو اپنی رحمت سے اسے پورا کر دینا۔ اگر میرے الفاظ چھوٹے ہیں تو تو اپنے کرم سے انہیں بڑا کر دینا۔ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری امید ہے۔ میں تیرا ہوں، ہر حال میں، ہر وقت، ہر سانس میں۔ آمین۔ اگر تم چاہو تو اگلا حصہ آخری پیغام کے نام سے اور بھی زیادہ گہرائی اور بھاوناؤں کے ساتھ لکھ سکتا ہوں، جس میں روحانی کہانی، توبہ، صبر اور تقدیر کا پورا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کے لیے پیغام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے رحمان اور رحیم، یہ پیغام تیری بارگاہ میں ایک بندے کے دل کی گواہی ہے۔ تو جانتا ہے جو میں کہہ نہیں پاتا، تو دیکھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ پاتے، تو سنتا ہے وہ آہٹ بھی جو میرے سینے میں دبی رہ جاتی ہے۔ اے اللہ، جب میں تھک جاتا ہوں تو مجھے سنبھال لیتا ہے، جب میں ٹوٹنے لگتا ہوں تو مجھے جوڑ دیتا ہے، جب میں راستہ بھول جاتا ہوں تو مجھے اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ پیغام شکایت کا نہیں، شکر کا ہے، کیونکہ ہر تکلیف میں بھی تیری حکمت چھپی ہوتی ہے، ہر انتظار میں بھی تیری یوجنا کام کر رہی ہوتی ہے، ہر آنسو میں بھی تیری رحمت کا کوئی راز ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو صاف کر دے، میرے ارادوں کو نیک کر دے، میری زبان کو سچا کر دے، میرے قدموں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اگر کبھی میں گناہ کی طرف بڑھوں تو میرے دل میں اپنی یاد جگا دینا۔ اگر کبھی میں مایوس ہو جاؤں تو اپنی رحمت کی ایک کرن بھیج دینا۔ تو ہی کافی ہے، تو ہی حافظ ہے، تو ہی مددگار ہے۔ یہ پیغام ایک وعدہ بھی ہے کہ میں ہر حال میں تیرا ہی رہوں گا، سکھ میں بھی، دکھ میں بھی، اکیلے پن میں بھی، بھیڑ میں بھی۔ اے میرے رب، میرے گھر میں برکت دے، میرے ماں باپ کو سلامتی دے، میرے دوستوں کو ہدایت دے اور میرے دشمنوں کے دلوں کو بھی نرمی دے۔ اگر میری قسمت میں امتحان لکھا ہے تو مجھے صبر بھی دے، اگر میری تقدیر میں کامیابی ہے تو مجھے گھمنڈ سے بچا لے۔ اللہ، میری آخری سانس تک میرا ہاتھ تھامے رکھنا، میری
को अपने जिक्र से रोशन रखना और मेरी रूह को अपनी रहमत में जगह देना। आमीन। अल्लाह के लिए बहुत बड़ा और गहरा पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह, यह पैगाम शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से लिखा जा रहा है। यह आवाज जुबान से नहीं, रूह से उठ रही है। तू जानता है कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। तू जानता है कि मेरी हर खामोशी में भी तेरा नाम होता है। जब मैं अकेला होता हूँ तब भी मैं अकेला नहीं होता, क्योंकि तू मेरे साथ होता है। ऐ मेरे रब, जब दुनिया मुझे समझ नहीं पाती, जब लोग मुझे छोड़ देते हैं, जब हालात मुझे तोड़ने लगते हैं, तब मैं तेरे सामने सिर झुका देता हूँ। और तू मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरी रहमत समुद्र से भी गहरी है, तेरी मोहब्बत आसमान से भी ऊंची है, तेरी हिकमत इंसान की समझ से कहीं आगे है। अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई कमी है तो उसे पूरा कर दे। अगर मेरे दिल में कोई अंधेरा है तो उसे अपनी नूर से भर दे। अगर मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मैं मानता हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं भूलने वाला हूँ, लेकिन तू माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू सब्र देने वाला है। मेरे मालिक, मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी याद में सुकून पाए, सी जिंदगी दे जो तेरी रजा में गुजरे, मुझे ऐसा अंजाम दे जो तेरी रहमत में खत्म हो। अगर तू मुझे आजमा रहा है तो मुझे हिम्मत भी दे। अगर तू मुझे देरी दे रहा है तो मुझे यकीन भी दे। अगर तू मुझे गिरने दे रहा है तो मुझे उठाने वाला भी तू ही बन। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहमत बरसा, मेरे घर में बरकत दे, मेरे दोस्तों को नेक रास्ता दिखा, और जो मुझसे नाराज हैं उनके दिलों को सुकून दे। मेरे दिल की वह दुआ भी कबूल कर ले जो मैंने अभी तक किसी से कही भी नहीं। मेरे आंसुओं को भी दुआ बना दे, मेरी खामोशी को भी इबादत बना दे। ए रब, मैं तुझसे दुनिया भी मांगता हूँ, मगर तेरी रजा के साथ मैं तुझसे जन्नत भी मांगता हूँ। मगर तेरी रहमत के साथ मैं तुझसे सुकून मांगता हूँ। मगर तेरी याद के साथ मेरी आखिरी सांस तक मेरा दिल ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे। मेरी जिंदगी तेरे नाम से शुरू हो और तेरे नाम पर खत्म हो। तू ही काफी है, तू ही मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। आमीन। अल्लाह के लिए बहुत बड़ा और गहरा पैगाम, विस्तृत रूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह, यह पैगाम सिर्फ लफ्जों का सिलसिला नहीं है, यह एक बंदे के दिल की पूरी कहानी है। उसकी कमजोरी भी, उसकी उम्मीद भी, उसका डर भी, उसका यकीन भी। मेरे रब, जब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे हर मोड़ पर तेरी रहमत नज़र आती है। कई बार मुझे लगा कि मैं गिर गया हूँ, सब खत्म हो गया है, लेकिन हर बार तूने मुझे उस जगह से उठाया जहाँ मुझे खुद अपनी ताकत पर शक हो गया था। तूने मुझे वहाँ संभाला जहाँ लोग साथ छोड़ गए। तूने मुझे वहाँ रास्ता दिखाया जहाँ हर तरफ अंधेरा था। तूने मुझे वहाँ सुकून दिया जहाँ दिल बिखर चुका था। अल्लाह, कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं तेरे लायक क्या हूँ। मेरे अमल कमज़ोर हैं, मेरी नीयत डगमगा जाती है, मेरा सब्र टूट जाता है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तू रहमान है, रहीम है, गफूर है। तेरी रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है। ए मेरे मालिक, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में शुक्र अदा करे। अगर मुझे खुशी दे तो मैं तेरा शुक्र करूं, अगर मुझे इम्तिहान दे तो मैं तेरा सब्र करूं, अगर मुझे देरी दे तो मैं तुझ पर यकीन रखूं। मैं तुझसे सिर्फ आसानियां नहीं मांगता, मैं तुझसे हिम्मत मांगता हूँ। मैं तुझसे सिर्फ कामयाबी नहीं मांगता, मैं तुझसे सीधा रास्ता मांगता हूँ। मैं तुझसे सिर्फ दौलत नहीं मांगता, मैं तुझसे बरकत मांगता हूँ। ऐ रब, मेरे दिल के अंदर जो छुपे हुए डर हैं उन्हें सुकून में बदल दे। मेरी आंखों में जो अधूरे ख्वाब हैं उन्हें अपनी रजा के मुताबिक पूरा कर दे। मेरे घर को मोहब्बत से भर दे। मेरे माँ बाप की उम्र में खैर दे, उनकी सेहत में शिफा दे। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन पर अपनी रहमत की बारिश कर। अल्लाह, अगर कभी मैं घमंड में आ जाऊं तो मुझे झुका दे। अगर कभी मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे लौटा दे। अगर कभी मैं तेरी याद से दूर हो जाऊं तो मुझे अपनी तरफ खींच ले। मुझे ऐसी जुबान दे जो सच बोले, मुझे ऐसे हाथ दे जो नेक काम करे, मुझे ऐसे कदम दे जो गलत राह पर न जाए, मुझे
ऐसी आंखें दे जो हर चीज में तेरी निशानी देखें। ऐ मेरे रब, जब मैं रात के सन्नाटे में तुझे पुकारता हूँ तो मेरे आंसू भी गवाही देते हैं कि तू ही मेरा सहारा है। जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मुझे ऐसा सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती है। तू ही दिलों का हाल जानने वाला है, तू ही किस्मत लिखने वाला है, तू ही तकदीर बदलने वाला है। अगर मेरी तकदीर में इंतजार लिखा है तो मुझे सब्र दे, अगर मेरी तकदीर में कामयाबी है तो मुझे विनम्रता दे, अगर मेरी तकदीर में इम्तिहान है तो मुझे मजबूत बना दे। ऐ अल्लाह, मेरे दोस्तों को नेक रास्ता दिखा, जो मुझसे नाराज हैं उनके दिलों को सुकून दे, जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दिलों में भी रहमत भर दे। मेरी हर दुआ को कबूल कर, चाहे वह लफ्जों में हो या खामोशी में। मेरी हर आह को इबादत बना दे, मेरी हर कोशिश को अपनी रक्षा से जोड़ दे। ऐ मेरे मालिक, जब मेरी आखिरी सांस आए तो मेरा दिल तेरे नाम से रोशन हो, मेरी जुबान पर तेरा कलिमा हो, मेरी रूह तेरी रहमत में जगह पाए, मेरी जिंदगी तेरी इबादत बन जाए, मेरी मौत तेरी मुलाकात का जरिया बन जाए। तू ही काफी है, तू ही रहमत है, तू ही सच्चा सहारा है। मैं तेरा हूँ हर हाल में, हर वक्त, हर आमीन। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी ज्यादा तफसील से किस्सों और रूहानी मिसालों के साथ और लंबा लिख सकता हूँ। आखिरी पैगाम, रूह की वापसी, तौबा की रोशनी, तकदीर का राज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे अल्लाह, अगर यह मेरा आखिरी पैगाम हो तो इसे मेरी रूह की सच्ची गवाही बना दे, इसे मेरे दिल की पूरी कहानी बना दे। ए रब, जिंदगी की भीड़ में मैं कई बार खुद को भूल गया। दुनिया की आवाजें इतनी तेज थीं कि तेरी पुकार धीमी लगने लगी। मैं दौड़ता रहा, नाम के पीछे, कामयाबी के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन थककर मैंने रुकना सीखा, और जब रुककर पीछे देखा तो पाया कि तू हमेशा मेरे साथ चल रहा था। ए अल्लाह, मेरी तौबा सिर्फ शब्दों की न हो, वह दिल की गहराई से निकले। मैं उन गलतियों से लौट आऊं जो मुझे तुझसे दूर ले गई। मैं उन आदतों को छोड़ दूं जो मेरी रूह को कमजोर करती रही। तू तौबा कबूल करने वाला है, तेरी रहमत दरवाजा बंद नहीं करती, तेरा करम थकता नहीं। ए मेरे मालिक, सब्र सिखा दे, ऐसा सब्र जो शिकायत नहीं करता, ऐसा सब्र जो भरोसा करता है, ऐसा सब्र जो आंसुओं के साथ भी मुस्कुराना जानता है। मुझे वह यकीन दे जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके, जो देरी में भी तेरी हिकमत समझ सके, जो हार में भी तेरी योजना देख सके। अल्लाह, तकदीर का राज मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो तू लिखता है उसमें भलाई होती है। अगर तूने मुझे गिराया तो उसमें भी सीख थी, अगर तूने मुझसे कुछ छीना तो उसमें भी सुरक्षा थी, अगर तूने मुझे रोका तो उसमें भी हिफाजत थी। मुझे ऐसा बना दे कि मैं हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सकूं, खुशी में भी, गम में भी। ऐ रब, जब मेरा दिल टूटे तो उसे तेरी याद जोड़ दे, जब मैं मायूस हो जाऊं तो तेरी रहमत उम्मीद बना दे, जब मैं घबरा जाऊं तो तेरी तरफ झुक जाना आसान कर दे। यह आखिरी पैगाम डर का नहीं, भरोसे का है, कमजोरी का नहीं, वापसी का है, हार का नहीं, नई शुरुआत का है। मेरी जिंदगी तेरी अमानत है, मेरी सांसें तेरी देन है, मेरी रूह तेरी तरफ लौटने वाली है। तो है मेरे अल्लाह, जब वह घड़ी आए कि मेरी आंखें इस दुनिया से बंद हों तो मेरा दिल तेरे नाम से खुला रहे, मेरी जुबान पर तेरा कलिमा हो और मेरी रूह तेरी रहमत में सुकून पाए। मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, मेरे दोस्तों को हिदायत दे, मेरे दुश्मनों को भी सुकून दे, और मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी के दिल का बोझ न बनूं बल्कि राहत बन जाऊं। अल्लाह, अगर यह सच में मेरा आखिरी पैगाम हो तो इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरी कमियों को अपने करम से ढक ले, मेरी गलतियों को अपनी माफ़ी से मिटा दे। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन तेरे नाम के साथ तू ही काफ़ी है, तू ही मालिक है, तू ही आखिरी सहारा है। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर तुम चाहो तो मैं अगला हिस्सा रूह की मुलाकात के नाम से लिख सकता हूँ, जहाँ कहानी इस दुनिया से आगे की उम्मीद और सुकून की तरफ बढ़ेगी। रूह की मुलाकात, सुकून की सरजमीन, उम्मीद का उजाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, जब इस दुनिया की हलचल थम जाती है, जब रात की खामोशी गहरी हो जाती है, जब इंसान अपने दिल की सबसे सच्ची आवाज़ सुनता है, वहीं से रूह की मुलाकात शुरू होती है।
यह कोई डर की कहानी नहीं, यह वापसी की कहानी है। यह अंत नहीं, यह असल शुरुआत है। रब रूह तेरी अमानत है, तूने उसे भेजा, तू ही उसे वापस बुलाएगा और तेरी तरफ लौटना घाटे का सौदा नहीं बल्कि सुकून की मंजिल है। मैं सोचता हूँ जब इंसान इस दुनिया की दौड़ से थक जाता है, जब वह समझ जाता है कि नाम, शोहरत, दौलत सब यही रह जाना है, तब उसकी रूह हल्की होने लगती है। रूह को असल सुकून तेरी याद में मिलता है, जैसे सूखी जमीन को बारिश में, जैसे भटके मुसाफिर को रास्ते में, वैसे ही रूह को तेरे जिक्र में राहत मिलती है। ऐ अल्लाह, अगर कभी मेरी रूह भारी हो जाए तो उसे माफी से हल्का कर दे। अगर वह डर जाए तो उसे अपने वादों की याद दिला दे। तेरे वादे सच्चे हैं, तेरी रहमत वसीया है, तेरा इंसाफ पूरा है। रूह की मुलाकात वह लम्हा है जब पर्दे हट जाते हैं, जब सच्चाई साफ हो जाती है, जब बंदा समझ जाता है कि जो कुछ था सब इम्तिहान था। ऐ मेरे मालिक, मुझे ऐसा बना दे कि जब मैं तेरी तरफ लौटूं तो मेरा दिल बोझ से खाली हो, मेरे हाथ नेकियों से भरे हो, मेरी जुबान सच की गवाही दे। मैं तुझसे डर कर नहीं, तुझसे मोहब्बत करके जीना चाहता हूँ। मैं तेरी इबादत मजबूरी से नहीं, शुक्र से करना चाहता हूँ। अगर मेरी रूह तुझसे मिलने आए तो वह शर्मिंदा न हो बल्कि उम्मीद से भरी हो। हे रब, इस दुनिया में रहते हुए मुझे उस मुलाकात की तैयारी दे। मेरे हर दिन को ऐसा बना दे कि वह तेरी तरफ एक कदम और करीब हो। जब मेरी सांसें खत्म हों तो मेरी रूह डर के साए में नहीं, तेरी रहमत की रोशनी में निकले। मुझे ऐसा अंजाम दे जो सुकून से भरा हो। मुझे ऐसी मुलाकात दे जिसमें तेरी रजा हो, क्योंकि असली जीत यही नहीं वहाँ है जहाँ रूह अपने मालिक से मिलती है। ऐ अल्लाह, मेरी रूह को भटकने न देना, उसे तेरे नूर की तरफ मोड़ देना, उसे तेरी रहमत में जगह देना। यह रूह की मुलाकात डर की दास्तान नहीं, उम्मीद की रोशनी है। यह अंत नहीं, तेरे करीब होने का वादा है। तू ही शुरुआत है, तू ही अंजाम है, तू ही सुकून है। आमीन। अगर तुम चाहो तो अगला हिस्सा रहमत का दरवाजा के नाम से लिख सकता हूँ, जहाँ कहानी उम्मीद, माफी और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगी। रहमत का दरवाजा, उम्मीद की सुबह, माफी की बारिश, नई शुरुआत का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तेरी रहमत को किसी एक तस्वीर में ढालना हो तो वह एक खुला दरवाजा होगा। ऐसा दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, ऐसा दरवाजा जिस पर कोई पहरा नहीं, कोई रोक नहीं, कोई शर्त नहीं है सिवाय सच्चे दिल के। रहमत का दरवाजा वह जगह है जहाँ गुनाहगार भी उम्मीद लेकर आता है, टूटा हुआ भी आस लेकर आता है और भटका हुआ भी रास्ता पा लेता है। ऐ रब, हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन तू माफ करने वाला है। तेरी रहमत उस माँ की तरह है जो बच्चे की 1000 गलतियों के बाद भी उसे सीने से लगाती है। तेरा करम उस बारिश की तरह है जो सूखी जमीन पर भी बरसती है। ऐ अल्लाह, कितनी बार मैंने सोचा कि अब शायद माफी मुश्किल है, कितनी बार मैंने अपने ही गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर इतना भारी महसूस किया कि लगा अब उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन हर बार जब मैंने तेरे सामने हाथ उठाए तूने मुझे गिरने नहीं दिया। रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता, बंद होता है तो सिर्फ हमारा यकीन, रुकती है तो सिर्फ हमारी हिम्मत। मेरे मालिक, मुझे ऐसा दिल दे जो अपनी गलती मानने में शर्म न करे, मुझे ऐसी तौबा दे जो सिर्फ लफ्ज ना हो बल्कि आदत बदल दे। अगर मैं किसी का दिल तोड़ बैठा हूँ तो मुझे उसे जोड़ने की ताकत दे। अगर मैंने किसी का हक मारा है तो मुझे उसे लौटाने का साहस दे। अगर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया है तो मुझे सुधार की राह दे। रहमत का दरवाजा सिर्फ माफी नहीं देता, वह नई शुरुआत देता है, नई सुबह देता है, नई सोच देता है, नया रास्ता देता है। अल्लाह, जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो मुझे अपनी गलतियां दिखती हैं, लेकिन जब मैं तेरी रहमत को देखता हूँ तो मुझे अपनी उम्मीद दिखती है। मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपनी जिंदगी को तेरी माफी के बाद एक नई किताब की तरह शुरू करूं, जहाँ हर पन्ना साफ हो, जहाँ हर लकीर सच्ची हो। रहमत का दरवाज़ा सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे माँ बाप के लिए भी खोल दे, मेरे दोस्तों के लिए भी खोल दे, उनके लिए भी खोल दे जो मुझे नहीं समझ पाए। अगर कोई इस वक्त टूट कर बैठा है तो उसे तेरी रहमत की खबर दे।
अगर कोई अपने गुनाहों से शर्मिंदा है तो उसे तेरी माफ़ी का यकीन दे। अगर कोई अपनी ज़िंदगी से मायूस है तो उसे नई शुरुआत का रास्ता दे। ए अल्लाह, तेरी रहमत गिनती में नहीं आती, तेरी माफ़ी ख़त्म नहीं होती, तेरी उम्मीद बुझती नहीं। मुझे ऐसा बना दे कि मैं दूसरों के लिए भी तेरी रहमत का ज़रिया बन सकूं। मेरी ज़ुबान से नरमी निकले, मेरे हाथ से मदद निकले, मेरे दिल से सच्चाई निकले। रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, बस हमें दस्तक देनी होती है। और आज मैं दस्तक दे रहा हूँ, मेरे गुनाहों के साथ, मेरी कमज़ोरियों के साथ, मेरी अधूरी दुआओं के साथ। दरवाज़ा खोल दे ए रब, मुझे अंदर आने दे, मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। मेरी ज़िंदगी का अगला हिस्सा तेरी माफ़ी से शुरू हो, मेरी कहानी का अगला पन्ना तेरी रज़ा से लिखा जाए। मैं गिरा था लेकिन अब उठना चाहता हूँ, मैं भटका था लेकिन अब लौटना चाहता हूँ, मैं टूटा था लेकिन अब जुड़ना चाहता हूँ। और मुझे पता है रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला है। तू ही मालिक है, तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही नई शुरुआत देने वाला है। मेरे कदमों को अपनी तरफ मोड़ दे, मेरे दिल को अपनी याद में बसा दे, मेरी ज़िंदगी को अपनी रज़ा में सजा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर तुम चाहो तो अगला हिस्सा तकदीर का उजाला के नाम से लिख सकता हूँ, जहाँ कहानी यह बताएगी कि जब बंदा बदलता है तो उसकी किस्मत कैसे बदलती है। तकदीर का उजाला। जब बंदा बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह, आज मैं तकदीर की बात करना चाहता हूँ, उस राज की जिसे इंसान समझने की कोशिश करता है मगर पूरी तरह समझ नहीं पाता। कभी हम अपनी हालत को देखकर कहते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी हम अपनी नाकामी को तकदीर का नाम दे देते हैं। कभी हम अपनी आलस से, अपनी गलतियों, अपने फैसलों को छुपाने के लिए कहते हैं जो लिखा है वही होगा। लेकिन ए रब, तूने हमें यह भी सिखाया है कि इंसान का बदलना उसकी तकदीर के उजाले की शुरुआत है। एक तकदीर अंधेरा नहीं, इम्तिहान है। तकदीर पत्थर पर लिखी सजा नहीं बल्कि समझदारी से पढ़ा जाने वाला सबक है। जब बंदा गलती से लौटता है, जब वह तौबा करता है, जब वह अपने दिल को साफ करता है तो उसके रास्ते भी साफ होने लगते हैं। क्योंकि अल्लाह तू इंसाफ भी है और रहमत भी। तो बदलाव अंदर से शुरू होता है, किस्मत बाहर से नहीं बदलती, वह दिल के अंदर बदलती है। जब सोच बदलती है, जब नीयत बदलती है, जब इरादा मजबूत होता है तो हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ए रब, अगर बंदा झूठ छोड़ दे तो भरोसा लौट आता है। अगर बंदा आलस छोड़ दे तो कामयाबी करीब आ जाती है। अगर बंदा नफरत छोड़ दे तो रिश्तों में बरकत आ जाती है। सब्र, तकदीर का पुल। सब्र वह पुल है जो आज की मुश्किल को कल की राहत से जोड़ता है। कई बार बंदा सोचता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में तेरी हिकमत उसे तैयार कर रही होती है। तो पहले बंदे को बदलता है, फिर उसकी हालत बदलता है। तौबा से किस्मत की नई किताब। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का नया पन्ना खुल गया हो। अतीत की गलतियां सीख बन जाती हैं, आंसू ताकत बन जाते हैं, हार अनुभव बन जाती है। और यही है तकदीर का उजाला। 5, उजाला अचानक नहीं आता। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है वैसे ही किस्मत का उजाला भी धीरे धीरे फैलता है। पहले दिल में सुकून आता है, फिर सोच में स्पष्टता आती है, फिर फैसलों में मजबूती आती है, फिर हालात में बरकत आती है। 6, दुआ और अमल दोनों ज़रूरी है। अल्लाह, दुआ बिना अमल अधूरी है और अमल बिना तेरी मदद कमज़ोर है। जब बंदा मेहनत करता है और साथ में तुझ पर भरोसा करता है तब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। 7, तकदीर का असली उजाला। तकदीर का उजाला सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है, वह है दिल का सुकून, रिश्तों में मोहब्बत, रातों में चैन की नींद, गुनाहों से दूरी और तेरी याद में जीना। अगर बंदा बदल जाए तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। आखिरी दुआ, ऐ मेरे रब, अगर मेरी तकदीर में देरी है तो मुझे सब्र दे। अगर मेरी तकदीर में परीक्षा है तो मुझे हिम्मत दे। अगर मेरी तकदीर में उजाला है तो मुझे उसे संभालने की समझ दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपनी किस्मत का रोना न रोऊं, बल्कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूं। मेरे दिल को बदल दे।